So the paper in discussion today is June 23, variant 23. Um, it's the same idea. Case study आपने attempt करनी है. It's a mandatory case study for 20 marks. You want to get up to like 16. We'll try our best to do that. Um, उसके बाद माइक्रो के दो ऐसे में से एक ऐसे आपने करना है फॉर एन 8 मार्कर एंड 12 मार्कर बाय नाउ सिंस वी डन सो मेनी पेपर्स आई थिंक यू शुड बी लाइक pretty good with essay writing now. I'm hoping at least you know कि structure क्या होना चाहिए. Case study इस साल जो आई जो जून 23 वेरिएंट के अंदर आई है इट्स अबाउट डोनट्स वी ऑल आर अवेयर ऑफ डोनट्स वी ऑल लाइक डोनट्स वी हैव plenty of donut shops in Pakistan also. By the way, they're saying are demerit, right? Are donuts demerit goods? Of course we all know that it's demerit goods. It's extreme sugar. All sugary things are considered demerit goods. But it's one of the major breakfast thing, at least from the Western point of view. USA के अंदर खास तौर के ऊपर they have jokes on it and stuff. लिखते हैं that consumers love to eat donuts. In 2019 अगर देखा जाए तो यहाँ डेटा के अंदर ये 2019 10 billion of these deep fried sugar coated products were consumed in the United States. नीचे आपको फिगर 1.1 दिया हुआ है जिसके अंदर you can see how the donut की market has worked in कौन से साल से 2011 से लेके 2021 21 is projected based on the estimates. So this is what they're saying. फिर उसके बाद they further mention donuts are widely available throughout the US. They are specialist shops, like you have the Dunkin' Donuts and Krispy Kremes and all. जो ब्रांडेड डोनट्स बेच रहे हैं लोकल कॉफी शॉप के अंदर भी हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट tempting breakfast for the consumers on the way to work. They take coffee and donuts. The growing number of shops selling donuts has been increased also. Pakistan के अंदर भी I think you are all aware of the trend. There is a growing trend for us as well. COVID-19 pandemic has had a varying impact on the US donuts market. Obviously, लोग घरों में बंद थे. So despite having less incomes, many consumers have continued to buy small luxuries such as donuts, which remain affordable and can provide some short-term relief from the stress of the pandemic. Okay. Overall sales of donuts fell in 2020 and are forecasted to remain below their 2019 peak into 2000. ये 19 के अंदर पीक आया है कोविड आता है उसके बाद नीचे गिरता है और अभी भी एस्टिमेट है कि वापस से मार्केट्स राइज करेंगी probably they will continue to rise just a little COVID की वजह से little drop in the sales, right? फिर वो फर्दर बात करते हैं रीजंस फॉर दिस फॉल इन डिमांड आर द कंज्यूमर्स आर मेकिंग फ्यूअर शॉपिंग ट्रिप्स एंड इन सिटीज. तो अब जब लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे और कहीं रास्ते में जा नहीं रहे हैं वेदर इज शॉपिंग के ट्रिप्स हों वेदर काम के ट्रिप्स हों more people are working from home and therefore they're not buying their daily coffee and donut snacks. It makes perfect sense pretty much, right? यूके के अंदर they're saying more so than in the US, there's a growing concern about the increase of sugar consumption amongst children. So this is a growing trend. I think US के अंदर भी है. It's just that they've become too dumb to probably like think कि अभी हम alternative कर क्या सकते हैं. But apparently UK के अंदर there is a more growing concern. देख लेते हैं. This increase comes from soft drinks, chocolate biscuits, and sweet candies, as well as from jam-filled donuts, all of which are widely available in supermarkets and local convenience stores. ठीक? So in 2021, it was estimated that third of teenagers and two-thirds of adults in the UK are overweight. बहुत बड़ा percentage है. Almost 67% की आप बात कर रहे हो कि two-thirds of adults जो है वो
ओवरवेट है, third of teenagers, right? So that's an increase. It's an insane data that they're saying. So this has increased the pressure on the UK government to end online advertisement of a range of products, including donuts. Imagine that. It has been estimated that viewing 1 minute of advertising for product like donut leads to a child consuming an additional 14.2 calories, right? So they are making a link that अगर आप advertisement देखते हो donut की over the period of time, हर minute makes them consume additional 14.2 calories. Moreover, a ban, I wonder how they actually calculated this. I'm sure this is just an average that they try to work out. Moreover, a ban on advertising sugary foods would result in children consuming the equivalent of 62 million fewer donuts a year in the UK, right? Just think about it. Do we in Pakistan, are we thinking about all this sugar related stuff? Are we concerned? When I think about it, obviously, every single day I think about that with my kids. But I'm just thinking that is everyone in Pakistan doing that? I feel this is one of those income related things. First, you have to consume over sugar in order to have this concern. In a poor country like Pakistan, where you're in a you're in a lower middle income class, right? शुगर कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे कुछ हाई इनकम अपर मिडिल के अंदर ज्यादा है तो देन देयर इज मोर कॉन्शियसनेस ऑफ इट बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर स्टफ इट इज एक्सपेंसिव बाय द वे शुगर स्टफ your low income people are not so for them this is not really a concern and also they even though by the way Pakistan is amongst the top 5 in diabetic patients and that is coming from sugar foods, right? But it's still not in our concern. It's still in our जो हमारे मुल्क की जनरेशन है जो लोग हैं उसके अंदर इतना बड़ा वो नहीं है कि इतनी शुगर चीजें हमने नहीं कंज्यूम करनी बाय द वे इवन दो द डायबिटिक रेट इज क्रेजी इन पाकिस्तान वर्ल्ड डेटा के हिसाब से I guess the reason could be that people are not getting involved in luxuries. You notice this word, they've used the word luxuries. Donuts are something like luxuries. पाकिस्तान के अंदर जो शुगर आप कंसर्न करते हैं जो आपके लोग शुगर कंज्यूम करते हैं वो बिस्किट्स और चाय और शरबत और ड्रिंक्स इसके अंदर करते हैं मोस्टली ड्रिंक्स तो फिर भी आप कह सकते हो इट्स पार्ट ऑफ योर नॉर्मल इट्स अ नॉर्मल गुड इनकम गोज अप पीपल बाय मोर पर ओवरऑल ये लग्जरीज के अंदर आती हैं तो हमारी शुगर वाली चीजें भी ऑलमोस्ट लग्जरी में है ये सुपर बिस्किट और लेमन बिस्किट्स एंड दीज आर also considered normal goods when income goes up the consumption goes up in Pakistan also you understand तो हमारे यहाँ तो शुगर एनर्जी के लिए कंज्यूम की जाती है शौक के लिए इतनी कोई खास कंज्यूम नहीं होती वाइडर पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर बात करें So let's look at question number one. It says using the data in figure 1.1, calculate करना है percentage change in the value of sales 2011 to 19. Let's go up. Let's not try to hurry too much. Range देखते हैं 11 to 19 बोली है तो गलती अवॉइड करने की जरूरत है कि पूरी रेंज नहीं कह रहे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग सो $7,500 million worth minus 5,500 divided by the original into 100. प्लीज गलती नहीं करना इसके अंदर it would be a very bad mistake. I think the answer you're going to get is, yeah, 36.36%. इसको राउंड अप और राउंड डाउन भी कर सकते हो 35 विल बी मेरे ख्याल में तो 35 to 37 की रेंज में दे शुड अलाउ लेकिन बी सेफ 36 to 37 की रेंज से ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है
ठीक है, सो कीप इट विद इन दिस रेंज एंड आई थिंक यू विल बी फाइन। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो ये कैलकुलेशन वाले प्लीज राइज फॉल का जरूर ख्याल क्या करो। तो डू मेंशन दैट देयर इज अ प्लस 36.36 or you can write there is a rise in the sales by 36.36%। ठीक है, यूजली ये लोग क्या कहते हैं कि देखें, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि परसेंटेज निकालना है, तो इवन इफ किड्स राइट 36.36 एंड दे डोंट पुट अ परसेंटेज साइन, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। दे वोंट penalize you for that, but we know the right way is कि you make sure that you put a percentage का sign along with increase decrease जरूर बता देना। ठीक है जी। Explain one reason why the US market for donuts contracted in 2020. They've mentioned कि 2020 के अंदर क्या हो रहा है। So in this paragraph right over here, 2020 के अंदर क्या हो रहा है कि भाई लोग जो हैं वो शॉपिंग ट्रिप्स के ऊपर कम जा रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दे आर नॉट गोइंग एंड दे आर नॉट डिमांडिंग लेस। दो मार्क के लिए लिखना है, यू कांट जस्ट कॉपी और एक रीजन बोला है, तो यू हैव टू मेक द कनेक्शन। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है कि व्हाई द वन रीजन व्हाई यूएस मार्केट फॉर डोनट्स कॉन्ट्रैक्टेड इन 2020। तो वो क्यों गिर रहा है? तो यू विल मेंशन दैट फ्यूअर शॉपिंग ट्रिप, पीपल आर टेकिंग फ्यूअर शॉपिंग ट्रिप्स, और दे दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे आर नॉट गोइंग आउट, तो उसकी वजह से द डिमांड फॉर डोनट्स हैव फॉलन। प्लीज मेक श्योर दैट यू कनेक्ट दिस, आदत डालो इन चीजों की। तो डिमांड गिरने की वजह से रीजन, और फिर वो कैसे कनेक्ट हो रहा है डिमांड के साथ। वन लिखा हुआ है, comment on whether the demand for donuts in the US is income elastic or income inelastic। दो मार्क है, कुछ ज्यादा है नहीं। मैं चाहूंगा कि जस्ट इन केस इनकम इलास्टिक या इनकम इलास्टिसिटी को डिफाइन कर दो, दैट इट measures the responsiveness in quantity demanded due to change in income। लेकिन ये सिर्फ दो मार्क का है, और उसने कहा है वेदर द गुड्स आर इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो मेरे ख्याल के अंदर जस्ट बी सेफ, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी जनरली। फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन क्वेश्चन इज अबाउट कि डोनट इनकम इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, many consumers have continued to buy। इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है? दे कंटिन्यू टू बाय। तो मुझे तो इससे इस बात से ये लग रहा है कि ये जो गुड्स हैं ये इनकम इलास्टिक गुड्स हैं। इनकम इन इलास्टिक, सॉरी डिड आई से इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक गुड्स हैं, दैट पीपल इवन डिस्पाइट फॉलिंग इनकम या पीपल आर नॉट वर्किंग, हो सकता है कि पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग, या देयर सेइंग ना डिस्पाइट हैविंग लेस इनकम पीपल आर कंटिन्यूइंग टू बाय। यही बात लिख दोगे, हमारा दूसरा मार्क हो जाएगा। एक मार्क इन इलास्टिक का मिलेगा और दूसरा मार्क व्हाई डू आई मेक दैट स्टेटमेंट। एक्सप्लेन व्हाई अ डोनट माइट बी रिगार्डेड एज अ डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड को डिफाइन कर लो सबसे पहले। Demerit goods are over consumed and overproduced due to information failure. They are underpriced again due to information failure। Please आपकी ये definition के अंदर underproduced या underconsumed along with information failure, ये दो बातें तुम्हारी मस्ट है। इसके अंदर डोनट की बात हो रही है तो आप डोनट के हिसाब से जरूर बताएं कि डोनट्स के अंदर डेफिनेटली देयर इज a suspicion that people do not have the right information, they are not aware of the harmful effects of it, that is why they continue to consume it। um, right, so इस तरह से तुम्हारे ये दो मार्क के लिए आई थिंक इट्स एन इजी मार्क। एक information failure and they're not aware of the harmful effects of it and so they continue to consume it।
and there's an overproduction. I'm just looking for these two words. Here, with the help of a diagram, assess whether the market for sugary foods in the UK might be affected by the ban on online advertisement. I think ये तो clear है आपका एक diagram बनेगा diagram they've asked for it so it's a must that you make the diagram भी कोई बहुत complicated नहीं है एक simple सा demand supply donut का diagram बनाना है with the correct equilibriums make sure that your labels are there any label you miss out you're in trouble बिला वजह का एक mark जाएगा so we're expecting that the demand's gonna fall right this is what's gonna happen उसकी वजह से क्वांटिटी में फॉल आएगा यू नोटिस द अमाउंट ऑफ एरोज एंड ऑल दैट आई एम मेकिंग यू डू दैट इस तरीके से ये पूरा डायग्राम आपका बनेगा तो मेक श्योर यू इवन शो लाइक द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड ऑल ऑफ दैट तो कहते हैं हाउ असेस करो हाउ द मार्केट माइट बी अफेक्टेड तो हमने पहली बात क्या करनी है डायग्राम बनाना है आपको अच्छा से 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे डायग्राम और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी कंजम्पशन की वजह से डिमांड में ड्रॉप आएगा जिसकी वजह से उसकी प्राइस में भी ड्रॉप आएगा और क्वांटिटी ट्रेडेड में भी ड्रॉप आएगा राइट लेकिन फिर आप उसको काउंटर करेंगे 6 मार्क हैं उसके बाद आप काउंटर करेंगे और आप एनालिसिस के हिस्से में ही बताएंगे कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो एडिक्टिव हो जिसकी वजह से डिमांड का कर्व जो है वो ज़्यादा इनइलास्टिक है तो इतना बड़ा रिडक्शन शायद हो सकता है नहीं आए या फिर जो एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं एंड यू थिंक उसका जो इम्पैक्ट आएगा मे बी इंफॉर्मेशन फेलियर स्टिल कंटिन्यूज तो 2 मैटर्स हैं जो डीमेरिट गुड्स में आप हमेशा लिखते हो एक इनइलास्टिक डिमांड होने की वजह से पीपल माइट कंटिन्यू टू कंज्यूम इट एंड दूसरी बात कि इंफॉर्मेशन फेलियर अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है तो ये 2 बातें हैं जो आपने बहुत ख्याल से इन दोनों को लिखना है और फिर अपनी फाइनल इवैल्यूएशन आपने करनी है दैट यू नो इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and that there might be because of the banning based on the data provided there is a good possibility that people might buy less so इसके अंदर एक तो नंबर वन आप डोनर्स की बात कर रहे हैं विच इज अ मैन्युफैक्चर्ड गुड राइट तो इसकी सप्लाई वैसे तो इलास्टिक ही होगी सप्लाई इन इलास्टिक तो नहीं हो सकती तो अगर इस केस के अंदर भी अगर मैं सप्लाई का इन इलास्टिक बना भी देता हूँ तो डिमांड घटने की वजह से क्योंकि वो इन इलास्टिक है तो कोई ज़्यादा ड्रॉप आएगा नहीं उसके अंदर तो बेसिकली इसी डायग्राम के अंदर जस्ट थिंक अबाउट इट अब ये सप्लाई का इनइलास्टिक होता तो डिमांड वुड हैव फॉलन डाउन बट क्वांटिटी में कोई खास चेंज आना नहीं था उसकी वजह से तो बेसिकली द क्वेश्चन इज इसमें सप्लाई को मैं इसलिए फैक्टर इन नहीं करूंगा बिकॉज व्हाट वी वांट टू टारगेट अबाउट इज के बैन ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आपकी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट फेल हो जाए तो दैट इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन कि अगर गुड इनलास्टिक है एडवर्टाइज आपने किया ये भी आप बहुत अच्छा बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट आपने इतनी अच्छी डिजाइन नहीं की है उसकी इतनी ज्यादा मार्केट में रीच नहीं थी आपने जो मीडियम चूज किया वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया लोगों ने उसको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मोस्टली ऐसी डिमांड साइड इश्यूज तो आप उसकी बेसिस के ऊपर ये करेंगे ठीक है जी उसके बाद कहते हैं असेस द लाइकली इफेक्ट ऑन यूके कंज्यूमर्स एंड द यूके गवर्नमेंट ऑफ अ बैन ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर शुगरी फूड अफेक्ट ऑन यूके कंज्यूमर्स पहले तो यूके कंज्यूमर्स पे आप फोकस कर लें फिर आप उसको काउंटर कर लें फिर यूके गवर्नमेंट की बात कर लें फिर उसको काउंटर कर लें because remember there are two things mentioned over here if you miss out on any one of these you have problem ठीक है जी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बैन करने की वजह से यूके कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा वन थिंग इज दे गोना बी कंज्यूमिंग लेस ऑफ डोनट्स so people are likely to be healthier ठीक है जी ये तो एक लोगों के ऊपर आ गया लोग
विल नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऊपरली लिखा हुआ है कि इतने मिनट कम अगर लोग ऐड देखें तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो डेफिनेटली लोग जो है वो हेल्थियर चॉइसेस करेंगे, दैट्स हाउ दे गोना गेट अफेक्टेड। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, चूंकि लोगों ने खाना ही है तो दे माइट कम अप विद ऑल्टरनेटिव रेंजेस, ऑल्टरनेटिव काइंड्स ऑफ ऑप्शन, डाइट रिलेटेड, शुगर फ्री रिलेटेड, यू नो। तो अगेन दैट इज, कंज्यूमर के लिए वैरायटी बढ़ जाएगी, चॉइसेस बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से द प्रॉब्लम इज कि अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट को अब, क्योंकि लोग इतने ज्यादा ओबीस नहीं होंगे, हेल्दी चॉइसेस करेंगे, तो रिस्क ऑफ पीपल गेटिंग सिक शुड रिड्यूस। और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, यूके के अंदर हम एनएचएस कहते हैं, नेशनल हेल्थ सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, तो उसके ऊपर प्रेशर कम आएगा, टैक्स पेयर पे प्रेशर कम आएगा। राइट, गवर्नमेंट विल हैव मनी, मोर मनी टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, हेल्दी फूड्स को वगैरह वगैरह। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। फ्रॉम द इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम थिंकिंग कि वही जो आपने एडवर्टाइजमेंट का बैन किया है, विल इट रियली हैव एन इम्पैक्ट और नॉट? एक तो नंबर वन, वी ऑलवेज सेड कि देखें, जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा वो बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि लोगों के परसेप्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है। प्लस गवर्नमेंट ने जब ये बैन किया तो इसकी वजह से एक्चुअली कितना बड़ा रिडक्शन आया, दैट इज रियली हार्ड टू मेजर, कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। हो सकता है गवर्नमेंट का यूके, क्योंकि टैक्स कंपनीज कब चलेंगी, बिकॉज रिमेंबर देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स दैट्स हैपनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स वर्किंग एंड दे आर एम्प्लॉइंग पीपल। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक ये भी प्रेशर आ सकता है कि बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द रेवेन्यू, it would not be, you know, a good for them because they won't have money to spend on other things. तो आपने फिर उस बात को भी इसके अंदर फैक्टर इन करना है। तो सॉर्ट ऑफ लाइक यू टॉकिंग अबाउट द टू साइडेड, कंज्यूमर का फायदा, कंज्यूमर के नुकसान। आई एम जस्ट थिंकिंग कि बैन ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेंगे ऑन शुगरी फूड्स तो कंज्यूमर को कैसे नेगेटिवली इफेक्ट आ सकता है इसका? someone could suggest, I can't think of anything on top of my head, how would it negatively affect? uh, but ban is going to make them healthy, so they're actually going to save on hospital costs. I'm thinking, how would they be harmed if the government does something like this? How would consumers, एक तरीके से आप कह सकते हो, मैं भी बना रहा हूँ ये, कि कंज्यूमर सॉवरेंटी के बीच के अंदर इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, जिसके अंदर कंज्यूमर्स, you know, through advertisements, if they want something, they want to buy something, उनको एक happiness मिलती है, you're depriving people of that happiness by, you know, not allowing them to advertise, क्योंकि जब वो advertise करेंगे मेरा दिल चाहेगा डोनट खाने का और मैं जाके डोनट खाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, you know, so you're sort of like depriving me of that happiness in a way. I'm just making it up, man. Sugar helps them to reduce stress. That's true. Sugar is like, it reduces stress in a way. Sure. That would be an interesting thing to read, the question. All right. 2 minutes. So let me very quickly go over these two questions one more time. I know, you can go drink something and come back. I did not record, so I'm just going to go very fast with this. Question 2A.
Explain with the help of examples the significance of the size and sign of the coefficient of income elasticity of demand for the classification of the good and how confident you are of this classification. इसके अंदर हमने क्या किया था? इसके अंदर पहले तो 3 मार्क के लिए हमने इनकम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले वी डिड द डेफिनेशन ऑफ इट। डेफिनेशन के अंदर आप लिखते हैं इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस सॉरी इनकम। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। उसके बाद आप इलास्टिक और इन इलास्टिक को एक्सप्लेन कर देंगे लाइक आई डिड ओवर हियर। आई सजेस्टेड दैट राइट। फिर उसके बाद आपने कुछ चीजों की बात करनी थी कि प्लस का मतलब होता है नॉर्मल, नेगेटिव का मतलब होता है इंफीरियर। यू कैन यूज द फॉर्मूला, प्लेस इन द नंबर्स कि 10% राइज इन द डिमांड, 5% राइज इन द प्राइस, सॉरी क्वांटिटी में 5% इंक्रीज और इनकम में 10% इंक्रीज गिव्स यू अ पॉजिटिव 0.5। Positive represents normal good है, 0.5 which is less than 1 represents कि ये necessity है। तुमको 2 मार्क मिल जाएंगे इस बात पे बाय द वे। फिर आप अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, अगेन 10% इंक्रीज लेकिन डिमांड के अंदर 20% इंक्रीज, तो +2 की वैल्यू आ रही है। प्लस मींस नॉर्मल है और ग्रेटर देन 1 मींस कि ये एक सुपीरियर या लग्जरी गुड है। तुम्हें 2 मार्क इधर भी मिल जाएंगे, 1 मार्क इधर मिल जाएगा बिकॉज नॉर्मल पहले एक्सप्लेन हो चुका है। 3 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। बाकी अगर तुम चाहो तो नेगेटिव का भी लिख सकते हो। एंड देन फॉर द फाइनल इवेल्युएशन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट that the limitations of YD in terms of how the data is difficult to calculate, different time periods में होता है, उसकी accuracy questionable है। So it's not just the sign and the size that you have to look at, but other factors as well. फिर इसका जो पार्ट बी था कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन, उसको हमने कुछ इस तरह से आंसर किया कि सबसे पहले आप कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करेंगे, which is the difference in the what consumers are willing to pay shown by the demand curve and what they actually pay shown by the market price. Diagram के अंदर consumer surplus is the area below the demand curve and above the market price. फिर आप शो करेंगे कि अगर प्राइस गिर जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस में एड ऑन आ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस गिर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने इलास्टिसिटीज की बात करनी है। अगर आपका डिमांड कर्व इन इलास्टिक है और प्राइस के अंदर इंक्रीज आता है तो बहुत छोटा कंज्यूमर सरप्लस में फॉल आएगा इन कंपैरिजन इन प्रोपोर्शन टू द टोटल। फॉर द सेम प्राइस चेंज इलास्टिक कर्व होगा तो जो फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस है फॉर द सेम प्राइस चेंज इज गोना बी अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल। लेकिन जब मैं इन दोनों सरप्लसेस को कंपेयर करूंगा फॉर द सेम प्राइस चेंज, टर्न्स आउट कि इन इलास्टिक के केस के अंदर जो है इतना कंज्यूमर सरप्लस लॉस है और इलास्टिक के केस में द पर्पल एरिया शोज तो इन इलास्टिक में एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस लॉस होता है फॉर द सेम प्राइस चेंज एंड दैट इज व्हाट वी मेंशन। एंड फाइनली वी मेड अ कंक्लूजन दैट कंज्यूमर सरप्लस 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक, प्राइस में कितना चेंज आया, दूसरा इलास्टिसिटी, एंड तीसरा कि अगर कर्व में शिफ्ट आ जाता है तो उससे भी कंज्यूमर सरप्लसेस में वेरिएशन आती है। तो 3 चीजों की हमने बात की है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3A मेरिट के ऊपर क्वेश्चन है। आई थिंक विल जस्ट वेरी क्विकली स्किम थ्रू दिस क्वेश्चन। Why government intervention may be required in the case of merit goods? पहले तो merit goods को आपने define कर लेना है और government intervention के बारे में बता देना है। पहली बात, merit goods are goods कौन से which are underconsumed and underproduced due to information failure। ठीक है, one example could be education and healthcare, वैक्सीनेशन, राइट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम कहते हैं व्हेन द गवर्नमेंट intervenes in the market to correct the market failure as they're explaining over here because that's what government intervention is।
कि जब जहां डिमांड और सप्लाई फेल हो जाता है एंड दे आर नॉट करेक्टली डीलिंग विद द प्रॉब्लम, इन दिस केस ऑफ अंडर कंजम्पशन, तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। क्यों स्टेप इन कर लेना चाहिए? बिकॉज रिमेंबर यहां लिखा है कंसिडर व्हाई सच इंटरवेंशन मे नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो भाई पहले तो ये बताना है कि व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, मेरिट के केस के अंदर। तो आप, पहली चीज तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं, अगर तुमको याद भी हो ओ लेवल के थ्रू भी, आप हमेशा बोलते हैं कि पब्लिक गुड हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट and merit goods should be provided by the government. There is a difference. पब्लिक में आपको पता है इंफॉर्मेशन फेलियर है, सॉरी, माय बैड, फ्री राइडर प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का इशू एंड यू कांट मेक प्रॉफिट, तो प्राइवेट सेक्टर विल नेवर प्रोवाइड इट, तो गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड इट। मेरिट के अंदर यू कैन चार्ज पीपल एंड मेक मनी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट गुड। मेरिट गुड्स आर प्राइवेट गुड्स। Private sector will only provide enough that they make money on it. Okay? But there is an underconsumption. But because we assume that merit goods are essential, because uska ek bada benefit hai to the society, we should provide it. Do you follow? So as a result, government intervention and provisioning of the government becomes very essential. So why के अंदर हम लिखते हैं रीजन फॉर गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ मेरिट टू इंक्लूड के मेरिट गुड्स एक एसेंशियल गुड्स हैं आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी के लिए। प्राइवेट सेक्टर ये कभी भी पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट फैक्टर इन पीपल हु कांट अफोर्ड टू पे फॉर इट, राइट? और उसका ओवरऑल सोसाइटी में बेनिफिट ज्यादा होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट हैज टू फैक्टर दैट इन। अब you might be thinking कि why am I not seeing the negative effects over here, because क्वेश्चन के अंदर जो है ना ऑलरेडी आपके काफी पॉइंट्स तो इधर ही पूरे हो जाते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर वी वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाई इट माइट फेल। तो उसके अंदर हम ये बगैर बात करते हैं कि देखें जी, हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स ही नहीं हो मेरिट गुड्स इनफ प्रोवाइड करने के। जैसे पाकिस्तान के केस में स्कूल सिस्टम को पैसे देने के लिए नहीं है पैसे, उनके बहुत सारे पब्लिक गुड्स जो उनको प्रोवाइड करने चाहिए, दे डोंट हैव द फंड्स टू डील विद दैट और टू रन द गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उधर। या गवर्नमेंट में नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन कि मेरिट गुड्स कौन से प्रोवाइड करने की जरूरत है, राइट? ये भी हो जाता है भाई। ये भी एक फेलियर है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, दैट दे फेल टू सी कि भाई लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उनको हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से यू कैन सजेस्ट ओवर हियर दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारा आंसर स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखें जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कब होती हैं? वन रीजन फॉर इंफॉर्मेशन फेलियर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। मेरिट के अंदर मेरिट को अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया। गवर्नमेंट अगर ये प्रोवाइड करे तो उससे क्या फायदे होंगे, तो इसलिए करना चाहिए। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो अच्छा वो खरीद सकेंगे सस्ते रेट के अंदर। अब जस्ट इमेजिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोविड वैक्सीनेशन अगर पैसे में लगवा रहे होते लोग, तो डू यू थिंक इट वुड हैव हैड द सेम इम्पैक्ट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री? राइट? तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता आपकी उसके अंदर। एंड देन यू हैव द फाइनल इवेल्युएशन, द काउंटर आर्ग्यूमेंट कि देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन because the government might not be always be successful in providing it. फिर 3B की तरफ आते हैं। 3B के अंदर हम कह रहे हैं असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम, तो पहले हमें थोड़ा सा याद करने की जरूरत है कि बफर स्टॉक स्कीम होती क्या है। बफर स्टॉक स्कीम ये होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट बेसिकली एक सेफ्टी स्टॉक रखती है इन द टाइम ऑफ इन द टाइम ऑफ गुड हार्वेस्ट। जब देर इज अ सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड द प्राइस माइट फॉल, तो गवर्नमेंट वो एक्सेस खरीद के प्राइसेस को मेंटेन करती है। अच्छा, बाय द वे, बफर स्टॉक को डिफाइन आप कैसे करते हैं कि बफर स्टॉक इज अ गवर्नमेंट मैकेनिज्म थ्रू विच दे स्टेबलाइज द प्राइसेस एंड इनकम्स ऑफ द फार्मर्स।
ठीक है, स्टेबलाइजेस द प्राइसेस इज द फर्स्ट मेजर थिंग दैट दे डू। और अगर शॉर्टेज हो जाती है और उसकी वजह से प्राइसेस राइज होने का खतरा होता है, तो वो फिर बफर स्टॉक रिलीज करके प्राइस सप्लाई बढ़ा के प्राइसेस को वापस नीचे लेके चली जाती है। दिस इज हाउ इट वुड वर्क। बट द क्वेश्चन आफ्टर, मेरे ख्याल में एक छोटा सा इंट्रो जरूर देना चाहिए, हाउ बफर स्टॉक वर्क, वेदर देयर इज मार्क फॉर इट और नॉट। एक दो मार्क तो मेरे ख्याल में मिल जाएंगे, बिकॉज ये 3B है ना, तो 2 मार्क्स से ज्यादा तुमको नहीं मिलेंगे। मेन क्वेश्चन इज अबाउट द इफेक्टिवनेस of government intervention through buffer stock scheme। तो पहले आपने बफर स्टॉक स्कीम के फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे दिए, ठीक है। गुड आर्ग्यूमेंट इज कि वो प्राइस को राइज नहीं होने देता, फॉल नहीं होने देता, प्राइस में स्टेबिलिटी ले आता है, फार्मर्स को सर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, तो आपकी प्रोडक्शन में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर कितना स्टॉक रखने की जरूरत है, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू प्रिडिक्ट। इसके अंदर जब आप सरप्लस स्टॉक रख लेते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो आई जस्ट सजेस्टेड कपल ऑफ फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट। एक और काउंटर जरूर लिखो इसके अंदर कि कौन सी और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सब्सिडी सब्सिडी देते हैं, सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइसेस कम हो जाती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपने उसका काउंटर मुझे एक करके दे देना है कि बफर स्टॉक का काउंटर क्या, सब्सिडी का काउंटर क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट may not have the funds, they might have to pull out money from some other important stuff, right, like healthcare या education, which can have long term implications. So for and against argument of an alternative method. And then finally, you want to do like an effectiveness of buffer stock ka ek final thing. Although the intention is good, ठीक है, the problem is that there is a lot of money that gets tied in. The problem is कितना buffer stock रखना है या नहीं रखना. That is a very difficult thing to predict for the government, which already has a lot of things to do. इकोनॉमीज के अंदर जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कितना, पूरे मुल्क के अंदर जो फार्मर्स हैं वो कितना राइस उगाएंगे, कितना वीट उगाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इन एडवांस किसका खराब हो गया, किसका अवेलेबल है, किसकी अच्छी यील्ड हो गई, किसकी बुरी यील्ड है। ये आप सब पास्ट डेटा के हिसाब से करते हैं, प्रेजेंट के अंदर थोड़ा सा डिलेज होते हैं इन सारी चीजों को मेजर करने में। तो ये आप कह सकते हो कि बफर स्टॉक को रन करना जो है इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क, एंड देर इज अ मोर चांस दैट यू विल इनइफेक्टिवली यूज इट देन इफेक्टिवली यूज। तो मेरा ख्याल में तो ये इसका इवेल्युएशन होना चाहिए, एंड सजेशन दैट मे बी लाइक सब्सिडीज माइट बी मोर market related thing, ठीक। So that's how this would go. I have written a sort of like a example answer of this, which you can sort of later on go upon your own. But I've suggested कि इसके अंदर आपने क्या करना है, ठीक, with obviously a conclusion. So question 4A के अंदर we're talking about with the help of circular flow of income diagram, explain how equilibrium is determined in an open economy and consider whether a budget deficit or a trade surplus is more likely to cause a lasting effect. ओके जी। तो सबसे पहले आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है, प्लीज रिमेंबर, आई नो इन थ्योरी यू डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायग्राम्स विद द इंजेक्शन एंड द विड्रॉल एंड ऑल ऑफ दैट, बट सर्कुलर फ्लो के ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू डू लाइक फर्म, हाउसहोल्ड, एंड incomes are going from the firms to the household, and households are basically showing consumption expenditure, right? Consumption expenditure पूरा लिख लो, consumption लिख लो, expenditure लिख लो, all of them are acceptable. तो ये आपका बेसिकली डायग्राम होता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है, ठीक है। फिर if you want you can do the withdrawals and the injections wala also,
ठीक है, पर ऑब्वियसली वो आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही जाएगा। तो बेसिकली आप कुछ इंजेक्शंस की बात करते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओपन इकोनॉमी के साथ लिंक करता है। और फिर यू हैव अ लॉट ऑफ विड्रॉल जिसके अंदर सेविंग्स होती हैं, टैक्सेशन होता है और इंपोर्ट होता है। तो ये आपके बेसिकली हो गए इंजेक्शंस और ये हो गए आपके विड्रॉल्स या लीकेजेस। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ऑब्वियसली मैं अब्रिविएशंस लिख रहा हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल ऑफ दैट, और उसको आप एक्सप्लेनेशन के अंदर भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद द थिंग्स दैट वी नीड टू मेक श्योर व्हेन वी आर रीडिंग योर essay, व्हाट वी नीड टू सी इज कि आप ये जरूर बताएं कि इंजेक्शंस का क्या मतलब होता है, जो आप कहते हैं कि इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, और विड्रॉल्स जो होते हैं वो सर्कुलर फ्लो में से जो पैसा जा रहा होता है। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन होता है। मनी कमिंग इन इज इक्वल्स टू मनी गोइंग आउट। विड्रॉल्स में सेविंग्स हैं, टैक्सेस हैं, इंपोर्ट हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल फॉर एन इक्विलिब्रियम टू हैपन। इट शुड बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, राइट? ये देखना हमारे लिए जरूरी है सर्कुलर फ्लो के अंदर कि ये आपका इक्विलिब्रियम होता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये बजट व्हाट, इफ यू कंसिडर हाउ a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause a lasting disequilibrium। देखें जी, अगर आपके पास बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट मींस that government spending is greater than taxation. So if this is greater than this, naturally there is more injection and your circular flow uh, will see more injections. It will grow. Your circular flow is going to grow. Incomes are going to rise in your country. ठीक है, तो डेफिसिट की वजह से yes, this equilibrium will happen. ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि योर एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड योर इंपोर्ट्स आर मोर। दैट मींस देयर इज लेस इनफ्लो एंड मोर आउटफ्लो। उसकी वजह से सर्कुलर फ्लो के अंदर इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो वेदर you will have a lasting disequilibrium depends on कि आपके इंजेक्शन और विड्रॉल्स का क्या सिनेरियो है। इफ योर इंजेक्शन, जैसे इस केस के अंदर, इफ दे हैड मेंशन्ड द साइज और द नंबर, तो क्योंकि ये इनकम बढ़ा रहा है, ये इनकम कम कर रहा है, तो अगर ये दोनों सेम नंबर्स हैं, इसका जो डिफरेंस है वो सेम नंबर है, तो यू वुड हैव हैड अ बैलेंस सर्कुलर फ्लो। अगर इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है इससे, तो यू वुड हैव अ डिसइक्विलिब्रियम, या इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है इससे, तो फिर यू विल हैव अ डिसइक्विलिब्रियम। यू अंडरस्टैंड? तो इक्विलिब्रियम हैपेंस व्हेन withdrawals and injections are equal. Other than that, as long as this is greater than this or this is greater than that, you will have a disequilibrium. So तुम्हारे आंसर के अंदर ये सारी छोटी छोटे से रिमार्क्स होने चाहिए, and that will make it a conclusive statement. You must make a comparison of withdrawals versus injections to explain equilibrium versus disequilibrium. All right. उसके बाद assess whether an increase in investment in new infrastructure projects will always have a positive impact on the circular flow of income in an economy. Investment in new infrastructure, that means they're talking about capital goods के अंदर investment. This is considered, investment is considered as an injection. It is an inflow into the system, right? Obviously, इससे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज आता है मुल्क की, आपकी जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी बढ़ाने के अंदर इट कम्स इन हैंडी। सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा आना चाहिए, इट शुड।
विल इट ऑलवेज? क्वेश्चन मार्क है। व्हाई डू आई से क्वेश्चन मार्क है? बिकॉज अगर यही इन्वेस्टमेंट जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, व्हाट इफ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी इन बाइंग अ लॉट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स? यू फॉलो? तो अगर वो बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स के अंदर वो पैसा स्पेंड हो रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ आउटफ्लो आल्सो दैट इज टेकिंग प्लेस। तो अलोंग दैट लाइन यू हैव टू वर्क विद दिस। अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉर देयर सजेशन, नंबर वन, इन्वेस्टमेंट। दो चीजों में इन्वेस्टमेंट होती है, एक स्टॉक के अंदर और एक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है वो कैपिटल फॉर्मेशन की बात है। इट कैन बी डन बाय द फर्म्स, इट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे ऑब्वियसली लोग जो पैसा सेव करते हैं वहां से आते हैं। इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है विच ब्रिंग्स द मनी इनटू द सिस्टम। इसकी वजह से लोग ज्यादा इनकम कमाते हैं, लोग ज्यादा गुड्स कंज्यूम करते हैं, सर्कुलर फ्लो अच्छा मूव करेगा। बट देन यू हैव टू फैक्टर इन द लीकेजेस ऑल्सो। खास तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन कर लेती है या बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स से या लोग सेव कर लेते हैं, तो वो पैसा सिस्टम में से बाहर भी निकलेगा, लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। तो how will it have an impact on the economy really depends on what kind of a equilibrium you have. Okay? If the injections are greater or injections are lesser. अब जब हम इसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि देखें जी, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। रियलिटी के अंदर कई वजूहात हैं जिसकी वजह से पैसा आता है, और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पैसा बाहर जाता है। If we're able to assess if this is bigger than that, it will have a positive impact. But if it's the opposite way, then it might not have a very positive impact. ठीक है? यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर इट इज लाइकली टू हैव अ मच मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट देन हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसका एक सजेस्टिव ऐसे है, you can take a look. I'll just scroll it, and then you can pause the video later on and you can see. इसमें वही बातें हुई हुई हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, सर्कुलर फ्लो के अंदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आती हैं। um, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन के अंदर all the stuff about, in fact even like आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे बोरो करके, और सीपेक के प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, आपने पोर्ट बना दिया, आपने रोड्स बना दिए हैं, बट आप उससे कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, इसका कोई फायदा हुआ? और प्लस आपने बहुत सारी चीजें जो इसमें यूज की हैं वो इम्पोर्टेड चीजें हैं। तो instead of creating a multiplier effect in the economy, that money has actually flown out day one pay. So it's not really creating a positive impact as such into the economy, at least for now. Okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, explain how monetary policy may be able to reduce the rate of inflation in an economy and consider the likely success of this policy. भाई, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट होता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड इवन रेगुलेशन, द क्रेडिट रेगुलेशन। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है? व्हाट विल यू डू? इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए आप मनी सप्लाई कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन रेगुलेशंस को टाइट करेंगे, जिसकी वजह से बोरोइंग के अंदर रिडक्शन आएगी, रेगुलेशंस बढ़ाएंगे, सॉरी,
जिसकी वजह से जो है बोरोइंग कम होगी, एग्रीगेट डिमांड ड्रॉप होगा, और एग्रीगेट डिमांड ड्रॉप होने की वजह से इन्फ्लेशन में कमी आनी चाहिए, प्राइसेस में भी कमी आनी चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए। ओके, एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट विल इट हैव दैट इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन कि आपकी इकोनॉमी कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है। Do you understand this? LRAS. If your economy stands at AD1, then contractionary monetary policy is going to help and reduce inflation. However, if the economy is at AD3, that means it's already at very low level of inflation. Any kind of contractionary policy is only going to hurt economic growth and unemployment, not really going to do anything to the inflation. Um, राइट ऑल्सो, जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर्स बोरो करके किस तरह से बोरोइंग में चेंजेस लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते, इसको आप कहते हो इंटरेस्ट इन इलास्टिक। अगर लोग इंटरेस्ट इन इलास्टिक हैं और आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पीपल माइट कंटिन्यू टू बोरो द सेम अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन इट, राइट? तो फिर इट्स नॉट गोना मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो ये आपका इसके अंदर आप पॉलिसी डिस्कशन कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है एग्रीगेट डिमांड साइड पॉलिसी होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और रेगुलेशंस होते हैं। इंटरेस्ट रेट बोरोइंग को अफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को। मनी सप्लाई कितना क्रेडिट अवेलेबल है, और रेगुलेशंस इसके बैंक्स के पास कितना पैसा रखा होना चाहिए। इवन इफ यू डोंट टॉक अबाउट रेगुलेशंस, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन मस्ट इज कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी बताएं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, एंड देन यू एक्सप्लेन हाउ इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द अदर थिंग्स, राइट? एंड देन फाइनली योर इवैल्यूएशन के अंदर, विल इट बी एबल टू रियली हैव एन इम्पैक्ट और नॉट। मैं तो यूजली ऑनेस्टली एनालिसिस के अंदर काउंटर करता ही हूँ, तो कोशिश करना कि काउंटर कर लिया करो। फिर भी कुछ नहीं तो इवैल्यूएशन में मार्क हो जाएगा, अगर इवैल्यूएशन में नहीं तो एनालिसिस में तो हो ही जाएगा। आदत डालो, हमेशा इन इवैल्यूएशन करके अपनी इवैल्यूएशन को स्टार्ट किया करो। हमेशा ऊपर एक एनालिसिस में काउंटर जरूर दिया करो, जस्ट इन केस, यू नो, बिकॉज एनालिसिस में देयर शुड बी अ टू साइडेड आर्ग्यूमेंट। मार्किंग स्कीम जितना हम पीछे जा रहे हैं 2023 के अंदर एज कंपेयर टू 2024 और 2025, उसमें बहुत क्लैरिटी थी, जिसके अंदर एनालिसिस में यू वर रिक्वायर्ड टू डू टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स, राइट? लेकिन 2023 के पेपर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट मिसिंग है कुछ मार्किंग स्कीम्स के अंदर। तो और वो इवैल्यूएशंस में लिखी हुई हैं। मेक श्योर कि तुम एनालिसिस में दो साइड लिखो, और फिर इवैल्यूएशन में बेशक उसको रिपीट करके उस पर कुछ बिल्डअप करो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से या कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, एज डन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 12 मार्क में तो आई एम श्योर कि वो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अंदर कोई खास इतना मसला नहीं है। असेस हाउ गवर्नमेंट्स कैन यूज मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस टू अचीव देयर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम 5 ऑब्जेक्टिव्स तो मैं तुमको बता चुका हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस के अंदर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। डिड यू हेयर द लास्ट टू? प्रोटेक्शनिस्ट एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑल्सो। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं। हाउ गवर्नमेंट कैन यूज, मेरी नजर में आप कम से कम दो पॉलिसीज को यूज करेंगे। एक फिस्कल ले लें या मॉनेटरी ले लें, और एक सप्लाई साइड ले लें। ठीक है? और इन दोनों को यूज करके
अवॉइड मॉनेटरी एंड फिस्कल टुगेदर। मेरी नजर के अंदर एक सप्लाई साइड ले लो, एक मॉनेटरी साइड या फिजिकल, दोनों में से एक, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड लो, और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको लिंक किया जाए कि फिजिकल पॉलिसी से, एक्सपेंशनरी से एडी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन प्राइस बढ़ने के चांस हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं। एक्सचेंज रेट पॉलिसी के अंदर आप, वो वैसे तो अक्सर जगहों पे आप मॉनेटरी पॉलिसी में इसको कंसिडर कर लेते हैं, बट एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज कि आप अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट होने दें या अप्रिशिएट होने दें, उससे किस तरह से एक्स माइनस एम से एडी पे इम्पैक्ट आएगा और फिर वो हर चीज को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट होने देता हूं, तो उससे मेरे एक्सपोर्ट की प्राइस गिरेगी और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, इंपोर्ट्स गिर जाएंगे। एक्स बढ़ेगा, एम गिरेगा, तो एडी बढ़ जाएगा। एडी के बढ़ने से आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, एम्प्लॉयमेंट भी आती है, राइट? So इस तरह से you're going to be making these policies and you're going to be making the links. There is so much to write in this. लेकिन आखिर के अंदर make sure कि how government can use macroeconomic interventions to achieve their macroeconomic objectives. इसके अंदर you have to remember that different policies have different conflicts. आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने जा रहे हैं डिमांड साइड पॉलिसीज के थ्रू। इन्फ्लेशन इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट यू हैव टू डील विद। आप जब एक पॉलिसी अचीव करने की, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसके कुछ सर्टन रिप्रिकॉशंस आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं और उनको कौन सी चीज़ों की इंटेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू किसकी नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। आई हैव मेड अ सजेशन, इट्स अ बिग वन, जिसके अंदर आप फिजिकल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड, आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स विल टॉक अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम एंड connected to ADAS and then all the other objectives, और फिर उनकी लिमिटेशंस आर डिस्कस ऑल्सो। फिजिकल मॉनेटरी के अंदर टाइम लैग का इशू होता है, सप्लाई साइड लॉन्ग रन में ज़्यादा इफेक्टिव है, डिमांड साइड शॉर्ट रन में ज़्यादा इफेक्टिव है। यू नो, मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा जल्दी ऑपरेट करती है फिजिकल पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी क्विक टू ऑपरेट, कल इंटरेस्ट रेट की मीटिंग करो और चेंज कर लो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को एडजस्ट होने में, लोग कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं। सो मच टू राइट इन दिस, there's a lot to write in this, and I've given you like a suggestion. You can take a look at this later on some other time. ठीक है जी। So that's how these questions are written.